download, right? So flexible manufacturing system, we will cover what is flexible manufacturing system, FMS components, FMS application and benefits, FMS planning and implementation issues, and at the end, the quantitative analysis of FMS. So first of all, where to apply FMS technology? Plant presently either produces parts in batches or use manned group technology cell, and management wants to automate the cell. Manned is connected with the human, right? या मैनुअल कह सकते हैं, मैनुअल ग्रुप टेक्नोलॉजी सेल जो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में हमने पढ़ा था. It must be possible to group the portion of the parts made in the plant into the part families. The part similarities allow them to be proceeded on the FMS workstations. We can also connect the group technology with the FMS. But FMS, you know, from the name flexible manufacturing system, is totally concerned with the computer systems, with the advanced technology. That's the reason the manufacturing system has become very flexible, because it is having all the technologies, advanced technologies, computer-based systems, the PLCs, robots. That's the reason the system has been flexible, right? And that's why it is called a flexible manufacturing system. The group technology can be operated manually, right? And maybe semi-automatic, and if the group technology the group cell has been converted into the automated cell, then it is called the FMS, right? Parts and products are in the mid-volume, mid-variety, and product range. Mid-volume, mid-variety means that is in the batch production. So what is the flexible manufacturing system? It is a highly automated GT cell. Automated means everything is done, everything is going on without the intervention of the human being. You know, there is no manual system, everything has been automated. Machine cell is concerned with the cellular manufacturing, because in cellular manufacturing we find machine cells consisting of group of processing stations, usually CNC machine tools, not conventional, right? CNC machines tools are there in the cells. Interconnected by the automated material handling is also automatic. And storage system is also automatic. If you remember, we studied what is the automation storage system, that is ASRS and Carousel, both are the automated systems. They are connected in the cell with the cell and controlled by integrated computer systems, you know, server, right? So everything is automatic. And this is the machine cells, the group technology based machine cell, which is connected with the processing stations, usually CNC machines, interconnected by automated material handling. Automated material handling कौन कौन सी आपने पढ़ी थी, जिसमें ये कन्वेयर्स भी आ जाती हैं, उसमें AGVs भी आ जाती हैं, उसकी डिफरेंट मैकेनिज्म्स आपने पढ़ी थी. स्टोरेज सिस्टम में आपने SRS और कैरोसेल वगैरह आ जाती हैं, और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है उसमें PLCs और इस तरह की चीज़ें, एक सर्वर होता है, आ जाती हैं, जिसके साथ एक्चुएटर्स भी होते हैं, और वो ये ERP वगैरह भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो इन सारी चीजों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू नेटवर्किंग. FMS relies on the principle of the group technology. No manufacturing system can produce an unlimited range of products, and FMS is capable of producing a single part family or a limited range of the part families. Flexibility test in automated manufacturing system. You need to test the flexibility in the manufacturing system. How can you test the flexibility? For example, if flexibility means that how much the system is flexible, and you can check the flexibility level of the system. To qualify as being flexible, a manufacturing system should be satisfy the following criteria. Yes, answer for each question. If these answers are yes, then maybe you are flexible, your system is flexible. Can it process
different part styles in non-batch mode. If your system is feasible to produce different part style, different varieties in no batch mode, right? क्या ये प्रोड्यूस कर सकता है? आपका सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है कि वो अगर नॉन बैच मोड का मतलब ये है कि बेचेस ना हो. फॉर एग्जांपल एक पार्ट में पेन बना दिया, एकदम मैं कहता हूँ नहीं यार, कस्टमर कह रहा है मुझे मार्कर चाहिए, एक पेन बनाने के बाद मैं एक मार्कर बना रहा हूँ, फिर मैं जो है ना एक और वो जो बॉल पॉइंट बना रहा हूँ, फिर पेंसिल बना रहा हूँ. इज इट पॉसिबल, इज इट फ्लेक्सिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट पार्ट साइज इन नो बेच मोड? ठीक है, अगर ये कर सकता है तो ये तो बड़ा फ्लेक्सिबल है. कैन इट एक्सेप्ट चेंजेस इन प्रोडक्शन कैजुअल? एक्सेप्ट चेंजेस मीन, फॉर एग्जांपल, you have started working on the pen and there is a lot, the batch 100 का बैच है, 30 आपने बना दिए हैं, and एकदम आपको जो है ना एक चेंज आया है, कस्टमर कहते हैं ना यार आपने 30 मार्कर भेजे मार्केट में, ये यार इसमें ये नेब जो है ना, नेब ये बहुत मोटी है यार. एकदम आप सिस्टम पे बैठ के उसकी निब की जो डायमेंशन है ना, डिजाइन वो चेंज करते हैं, बाकी 70 जो है ना वो उसकी निब जो बनती है बड़ी थिन बनती है. तो दिस इज व्हाट एक्सेप्ट चेंजेस विदाउट टाइम. अब इसमें इतना टाइम लगेगा कि यार आप सेटिंग चेंज करेंगे, अगर कन्वेंशनल होगा या फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो सेटिंग चेंज करेंगे, मटेरियल चेंज करेंगे, ये वो नहीं, बस आप जाके कंप्यूटर पे बैठे विद इन ए सेकंड सिर्फ डिजाइन चेंज करें, बाकी सारे 70 किस तरह बनेंगे, स्मॉल निब वाले बन जाएंगे, निब उनकी स्मॉल या थिन बन जाएगी. Can it respond gracefully to equipment malfunctions and breakdowns? Very important. Malfunction is what the errors, problems occurred in the machines, in the system, right? ये इसको gracefully respond करता है equipment को या breakdown को. अगर for example FMS होगा तो आपको कंप्यूटर पे एरर के निशान आ रहा होगा कि यार your जो रोबोट है it requires some lubrication, preventive lubrication it requires. डेडलाइन या ड्यू आ गई है इसमें, इसका टाइम गुजर गया है, डेडलाइन गुजर चुकी है, सो इट रिक्वायर्स ए लुब्रिकेशन. आपको एरर आ रहे होंगे या अलर्ट्स आ रहे होंगे एंड यू नीड टू चेंज, यू नीड टू अप्लाई द लुब्रिकेशन, द ग्रीस आप उसको लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, लगाएंगे. अगर आप नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जो है ना उस रोबोट की जो है ना ब्रेकडाउन होने के खतरात बढ़ जाते हैं. कैन इट एकोमोडेट इंट्रोडक्शन न्यू पार्ट डिजाइन? एकदम न्यू पार्ट आ गया डिजाइन, ये उसको एकोमोडेट कर सकता है? These all questions are relevant to the flexibilities. अगर नहीं कर सकता तो इतना flexible नहीं है. So those are the different tests. Now, automated manufacturing cell. What is automated manufacturing cell? This is the automated manufacturing cell with two machines, tools, and robot. Is it flexible cell? This is machine workable. एक machine है, is a machine tool. Worktable है, sorry, यहाँ पर कोई काम हो रहा है, और एक machine tool है. This is part carousel. पार्ट कैरोसेल एक कन्वेयर है, उसके ऊपर जो है ना पार्ट्स या स्टोरेज है. ये रोबोट है. रोबोट क्या करता है? इधर से भी कुछ काम हो जाता है, यहाँ पे भी मशीन टूल काम कर देती है, इसके बाद उस पार्ट को रोबोट यहाँ पर फिक्स करता है, कैरोसेल में स्टोर करता है, और वो कैरोसेल इसको एक जगह पे जाके स्टोर कर सकता है. इसमें कैरियर्स होते हैं, बिन्स होते हैं, इफ यू रिमेंबर. ये फ्लेक्सिबल सेल है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेल. एक स्मॉल सा सेल है जिसमें एक रोबोट है और मशीन्स हैं डिफरेंट, और एक स्टोरेज सिस्टम है. इज द रोबोटिक वर्क सेल फ्लेक्सिबल? पार्ट वैरायटी टेस्ट हम चेक करेंगे कि हम अगर रोबोट की जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें, उसका रोबोट बेस्ड अगर वर्क सेल है, जिस तरह प्रीवियस में हमने ये स्लाइड में देखा है. पार्ट वैरायटी टेस्ट क्या होती है कि पार्ट की वैरायटी चेंज की जाती है, जिस तरह अभी हमने पहले पढ़ा था. कैन इट मशीन डिफरेंट पार्ट्स कन्फिगरेशंस इन मिक्स रेदर देन इन बेजेस? ठीक है, मिक्स पार्ट्स हैं तो वो उसको कन्फिगरेट कर सकता है. ठीक है, एकदम पार्ट डिफरेंट आ गया, पेन स्मॉल है मतलब, और एकदम मार्कर थोड़ा उसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो रोबोट उसको पकड़ सकता है. उसमें इतनी एडजस्टमेंट है उसकी रिस्ट में कि वो उसको हैंडल कर सकता है, उसको मूव कर सकता है. स्केजुअल चेंज टेस्ट, एकदम स्केजुअल चेंज हो गया. स्केजुअल इज व्हाट द सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑन द मशीन. पहले एक पेन है, मार्कर है, एकदम हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, पहले मार्कर कर दिया फिर पेन कर दिया. इससे देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं. कैन प्रोडक्ट स्केड्यूल एंड पार्ट में बी चेंज्ड? तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा. असल में इसको हम कहते हैं मैक्स पेन. मैक्स पेन इज व्हाट? मैक्स पेन, द
total time taken by all the parts on the machines. एक पार्ट उसने 10 मिनट लिए, दूसरे ने 5 लिए, तीसरे ने 5 लिए, 20 मिनट्स हो गए, 3 पार्ट्स थे, ठीक है। अच्छा, आप अभी पहले आपने एक पार्ट पहले दिया था, आप दूसरा पहले दे दें, फिर चेक करें आपका मैक्स स्पैन 20 आता है या नहीं। अगर 20 नहीं आता, 40 आता है, देन इट्स हैविंग प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि आपका जो है ना स्केड्यूल चेंज टेस्ट जो है ना वो फेल हो गया है, बिकॉज इट इज टेकिंग मोर टाइम इफ यू आर गोइंग टू चेंज द स्केड्यूल, चेंज द पार्ट्स ऑन द पार्ट का सीक्वेंस हम चेंज करते हैं मशीन पे, तो इट इज taking more time, so your boat work cell is not flexible, right? So these are the different tests. Okay. Is the robotic, again a third error recovery test, can it operate if one machine breakdowns? अगर एक मशीन सीक्वेंसिंग है, पार्ट सारी मशीनें एक सीक्वेंस में है, असेंबली लाइन है, ये वाली मशीन खराब हो गई तो ये फिर भी ऑपरेट करेगा? अगर ये ऑपरेट करेगा, सारे यहाँ पर जंक होना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं एरर रिकवरी टेस्ट। इट मस्ट रिकवर द एरर, बताना, इसको एरर बताना चाहिए इसको मेंटेनेंस मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को कि दिस एरर इन द मशीन। तो फिर इसको क्या करना चाहिए, लाइन चेंज करके यहाँ पर एक और ऑक्सिलरी मशीन हो उसकी तरफ लगा दे, ताकि वो प्रोसेस कंटिन्यू हो और उसको आप ठीक कर सकें। कुछ इस तरह इसमें होना चाहिए, होती भी इस तरह है। जिस तरह लोड शेडिंग आती है, तो लोड शेडिंग में की रिकवरी के लिए, लाइट की रिकवरी के लिए आप जनरेटर लगा लेते हैं इंडस्ट्री में, बड़े बड़े 500 kVA के, और बड़े हाई होते हैं वो, 1000 kVA का भी होता है जनरेटर। इसी तरह मशीन्स की भी, आपको अगर एक मशीन है और वो मशीन जो है ना की मशीन एलिमेंट है, इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर, तो आप उसके लिए एक ऑक्सिलरी मशीन भी लगाते हैं। एक मशीन के ख़राब होने के, ब्रेकडाउन होने के खतरात होते हैं। इट में कास्ट टू मच इफ़ योर मशीन की मशीन इज़ गोइंग टू बी ब्रेक डाउन, इसलिए उसके लिए आप ऑक्सिलरी मशीन भी फिट करते हैं, ताकि अगर वो सीक्वेंस ख़राब होती है तो आप दूसरी उस पर चले जाएँ। न्यू पार्ट सेल टेस्ट जो है, is a new part designed or developed, can NC part program written be offline and then downloaded to a system for execution? ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन होनी चाहिए, इसको कहते हैं कैट कैम का इंटरफेस होना चाहिए, कैट कैम का। आप कैट में चेंजेस करें, एकदम यहाँ पर अपडेट होते रहें, इसको कैट कैम इंटरफेस कहते हैं। So types of FMS, there are different types of FMS, काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। अगर ऑपरेशंस पे हम देखें तो हमारे पास जो FMS की टाइप्स हैं वो प्रोसेसिंग और असेंबली पे भी हो सकते हैं ऑपरेशंस। टाइप ऑफ प्रोसेसिंग में मशीनिंग रोटेशनल विद नॉन रोटेशनल, उस पर भी हो सकते हैं FMS की टाइप्स। नंबर ऑफ मशीन्स पे भी हम जो है ना इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं FMS को। अगर एक मशीन है, सिंगल मशीन FMS है, 2 या 3 है तो फ्लेक्सिबल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेल है, एक सेल में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 या ज़्यादा हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं इसको। ये सिंगल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेल कन्वेयर है, ठीक है, कन्वेयर, उस पर कुछ शटल्स हैं, ये मूवमेंट हो रही है, ये ठीक है, ये हमारे पास पैलेट होल्डर है, पैलेट होल्डर, पैलेट लगा हुआ है इस पर, शटल कार्ट है, ये पैलेट विद पार्ट, ये पार्ट है, पैलेट के ऊपर पार्ट लगे हुए हैं डिफरेंट। ये जब सामने यहाँ पे आएगा पैलेट रेक, तो ये इसको यहाँ से उठा के इधर ले आएगा, ठीक है। मशीन पे जब काम होता है इसको इस कन्वेयर के ऊपर लगा देता है। इधर एक और मशीन भी पॉसिबल है कि पड़ी हो, ये वहाँ से आ रहा है, उसका एक कार्ट पड़ा हुआ है, या वैसे ऑक्सिलरी भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये यहाँ से इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर लगाता है, यहाँ पे जब ये आता है तो मशीन इसको प्रोसेस करके दोबारा इस कार्ट के इस कन्वेयर के ऊपर ये कन्वेयर मूव करता है और यहाँ पर इसको यहाँ पर दोबारा एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे पड़े हैं, ये पार्ट्स हैं और ये मशीन है, इसमें टूल स्टोरेज भी है, CNC मशीनिंग सेंटर है, स्पेंडल है, शटल कार पैरेलल एंड पार्ट, पैलेट्स हैं। दिस सिंगल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेल, a single machine CNC machining cell photo courtesy of Cincinnati Milacron इंडस्ट्री है, उसमें ये है सारा। देखें ये कार्ट्स हैं, ये मशीन पार्ट्स हैं डिफरेंट, और ये मशीन सेल है, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रोसेस करके इसके ऊपर लगा के ये मूव करता है और फिर यहाँ से इसको बाहर किसी मटेरियल हैंडलिंग
टूल इक्विपमेंट के ऊपर लगा के इसको मूव कर किया जा रहा है. The flexible manufacturing says we have 2 or 3 machines. ठीक है, एक शटल कार्ट है और एक सेल में हम इसको डाल सकते हैं. That's the reason it is called flexible manufacturing cell. ये लोड अनलोड स्टेशंस हैं डिफरेंट. लोड भी पॉसिबल है, अनलोड भी पॉसिबल है. यहाँ पे इसको लोड किया जाता है, फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, दोबारा अनलोड यहीं पे इसको किया जा सकता है. ये कन्वेयर बेल्ट है या कन्वेयर है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ट्रैक वाला. ये देखिए इसके ऊपर शटल कार्ट लगा हुआ है, ये इसको मूव कर सकता है. The two machine flexible manufacturing cell for machinery photo courtesy of Cincinnati Milacron. यहाँ पर ये देखें मेरे ख्याल में ये एक मशीन है, ये दूसरी मशीन है और ये कोई कन्वेयर लगा हुआ है या कोई इसका कार्ट लगा हुआ है. यहाँ प्रोसेस किया जा रहा है सारा आप इसमें. ठीक है. दिस इज 5 मशीन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉर मशीनिंग 1 2 3 4 5. और ये इसी तरह जो है ना एक रैक है, ये देखें इसके ऊपर ये रैक शटल है और यहाँ पर इसकी स्टोरेज सिस्टम है, मतलब लोड अनलोड स्टेशन है. यहाँ पर ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होगा जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा. The features of 3 categories. The first is a single machine cell. On x-axis there are number of machines, and y-axis there are investment, production rate, annual volume. All 3 factors. The investment is the cost. Production rate is, if you need more production rate, then you need more machines. Simple. And annual volume जो है, annual जो production है उसकी बात कर रहा है. A single machine cell सबसे low है क्योंकि इसमें इतनी production rate भी कम है, investment भी कम है और volume भी कम है. 2 और 3 हैं तो flexible manufacturing systems, और अगर 4 ज़्यादा हैं तो flexible manufacturing systems. FMS types, so level of flexibility. The first is dedicated FMS. अगर हम level of flexibility पे FMS को divide करें, categorize करें तो हमारे पास 2 types आते हैं. The first is dedicated FMS and second is random order FMS. ठीक है. अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इसमें डिजाइन टू प्रोड्यूस ए लिमिटेड वैरायटी ऑफ पार्ट स्टाइल. डेडिकेटेड है ना, तो लिमिटेड वैरायटी ऑफ पार्ट स्टाइल. The complete universe of the parts to be made on the system is known as advance. Part family is likely based on a product commonality rather than geometrical similarity. ज़्यादातर अगर वो कॉमन है, एक जैसे हैं, तो उसको जो है ना पार्ट फैमिलीज में कन्वर्ट किया जाता है और इसमें जो है ना लिमिटेड वैरायटी है, सॉफ्ट वैरायटी कह सकते हैं इसको, सॉफ्ट वैरायटी जिसमें वेरिएशन बहुत कम हो पार्ट्स में. रैंडम ऑर्डर FMS जो है अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज पार्ट फैमिलीज. इसमें पार्ट फैमिलीज बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है, और काफ़ी लार्ज फैमिली हो जाती है, पार्ट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पर वेराइटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, हार्ड वेराइटी हो जाती है. न्यू पार्ट डिज़ाइन विल बी इंट्रोड्यूस्ड. बिल्कुल नए पार्ट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं. प्रोडक्शन स्केड्यूल इज सब्जेक्ट टू डेली चेंजेस हो रही होती हैं इसमें. सो व्हाट इज डेडिकेटेड वर्सेस रैंडम ऑर्डर FMS. तो इसमें अगर वेराइटी चेक करें तो वेराइटी जो रैंडम ऑर्डर है उसकी ज़्यादा है, डेडिकेटेड की कम है. वाई एक्सिस पे वेराइटी है और एक्सिस पे प्रोडक्शन रेट वॉल्यूम है. और यहाँ पर डेडिकेट में आपके पास वेराइटी जब कम होती है तो प्रोडक्शन रेट और वॉल्यूम ज़्यादा होता है. दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना. द P variety and Q is the production quantity. FMS components. What are different components? The first is the workstations, material handling and storage systems, computer control system, and human labor.